अभी रिकमेंडेड हुए हैं स्पर्श बर्तवाल। स्पर्श बर्तवाल अभी 147 8 कोर्स के लिए। 147 ऋषि गुप्ता। तुम कहाँ से हुए? पौड़ी गढ़वाल। नहीं कौन से? बैंगलोर। बैंगलोर। और तुम? कपूरथला से। यस सर। ये मैं देख रहा था बोल ठीक से नहीं पा रहा था यहाँ पे। हाँ सर। फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट डे बोला था सर। तो इसलिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ ठीक से नहीं हुआ तो वहाँ ठीक से नहीं होगा, है ना? तो कांग्रेचुलेशन बॉयज, ये लो मीठा ले लो। दिवाली हो गई तुम्हारी यहाँ। He is overweight, sir. So don't feed him. He is underweight, sir. He is underweight, so actually you can give him entire diet. लो, मैं भी खा लेता हूँ। थोड़ा सर आपको थोड़ा मेडिकल देना था, खाओ। मेडिकल नहीं देना, फिट रहना। बढ़िया ना? यस सर। तो मैं तो मेरे को आपको देना है। मैंने बोला था कि जो जनरली हम एक प्लास्टिक वाला फूल लेते हैं, तो मैं ये कहता हूँ जब रिकमेंड हो तो रियल लाना। रियल आना। तो थैंक यू वेरी मच। Second one. थैंक यू। सेकंड नंबर पर फैकल्टी के लिए। ये डीडीए डायमंड्स आज रिकमेंड होके आए हैं एनडीए के लिए, और अच्छे से ट्रेनिंग करना भी। हमारी कब तक आएगी सर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर सर। क्या लग रहा है? लिटिल बिट There is no problem, sir. They will be recruiting 500. So I think so. Don't worry about it. I told you already. Don't worry about it. Once again congratulations। Thank you, sir। ठीक है। और फिर तुम्हारी पीओपी में आऊंगा मैं, ठीक है? मैं जा रहा हूँ फिर। Thank you, sir। आ जाओ, तुम भी आ जाओ यार। ये से हैं, से आ रखे हैं अभी। एफकेट का तुम्हारा एसएससी के लिए। ये मेरा चेस्ट नंबर था वहाँ। लकी नंबर। देखो 07 इसका था, तुम्हारा भी होना चाहिए था ना? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गुड लक। Thank you, sir। और कभी भी यूनिफॉर्म में जब तुमको होगा ना, एक फोटो जरूर भेजना। यस सर। ठीक है? श्योर सर, डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गाइडेंस। गुड लक। वेट कम कर ला भाई, ठीक है? Jai Hind, gentlemen. My name is Spurge Barthwal and I am from Pauri Gadwal. And recently I have passed out and got recommended for the NDA 147 course, and I have taken my training here at DDA Dehradun. And I can assure you that if you want to crack the NDA 147 course, then the DDA can surely act as a catalyst in your preparation and help you excel in the examination. As far as it comes to my experience here, I have learned a lot, and also learned from my colleagues and also from the teachers that I had here, especially the GTO sir, Ravi Patel sir, and also the psychologist and the interviewing officer. That greatly helped me, provide me an insight with the procedure as to how I will perform there, and what mistakes and what things I have to work on, and what things I have to prepare myself more dedicatedly. At last, when it comes to myself, when here, I really enjoyed the infrastructure here, be it the ground or be at the facilities or the medical facilities. While doing the GTO task here, we were greatly inquired and given the reporting here about as to how to do the things, and also the medical facilities as to how if anybody gets injured, quick medical attention was being given to them. And also it was a very learningful environment here, through which I have learned a lot, and I will wish you all the best for your preparation. Jai Hind. My name is Rishi Dubey and I have recently got recommended for my 147 NDA course, and I have completed my SSB course in DDA Doon Defence Academy, Dehradun. I am assuring you, if you want a catalyst in your life to clear the SSB exam, I surely recommended you to join the Doon Defence Academy in Dehradun. They surely provide a good infrastructure and proper guidance for whole procedure of 5 days in a SSB. I was properly guided for the plotting about the GTO ground by the Assessor Ravi Patel sir, and the proper guidance about the psychology and by KK Tanwar sir. DDA will provide a proper guidance and a proper plotting about what the procedure is about. Good morning, gentlemen. Good morning sir. How is your preparation of SSB? Fine? Yes sir. Okay, you got a competence here? Yes sir. How is your psychology? Yes Nice? Interview sessions? Nice. How is the GTO is going on? sir. All fine? Yes sir. Today,
we got 2 students, those have recommended for 147 NDA course. Okay? Yes, sir. They are right in front of you. Okay? Yes, sir. First of all, I will introduce themselves. First of all, Rishi Dubey. He was a student of 10th SSB batch at Doon Defense Academy. And second one is Sparsh Barthwal. Okay? They have cleared NDA 147 course. They recommended. Okay? Yes, This is a proud feeling for Doon Defense Academy. And for you also. Okay? Yes, sir. Because you are also preparing for the same thing. Somebody is going for the APCAR entry, for NDA, all other entries. To become a defense officer, this is a proud thing. Understood? Yes, sir. Now, they have visited here to get the blessing from interviewing officers, GTO, psychologists, SSB coordinators. Okay? Yes, sir. Today we got an opportunity. They are with us and they will share some experience with you, which will be useful for you for your SSB procedure. You know there is a 5-day procedure. Yes, sir. Okay? They have completed all these procedures and they have recommended. Personally, I can say they have done work hard here. I have seen personally they have taken the complete interest on GTO, interview part, psychology parts. Whatever trainings given by the Doon Defense Academy, they have taken it properly. This is the requirement. What I have been telling you all the time. You know the things? Yes, आपको मैंने बताया कि जब यहाँ पर आप SSB ट्रेनिंग लेते हैं 2 weeks की ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, to become a defense officers. Put the 15 officer like qualities on you. This is the requirement. They have done it and they have cleared, they have recommended. Now they will proceed for the next step. Understood? Yes, sir. Once again, I'm congratulations on behalf of Doon Defense Academy, entire staff and all about yourself. आपके बारे में जो सभी लोग जितने भी हैं, सबके behalf में उनको एक बार फिर congratulations. Now I will request them to share some information, some suggestion to you, which will be useful for you. Okay, gentlemen? Yes, sir. Now, Sparsh, you can share the information. Okay? Please. So good morning, gentlemen. My name is Sparsh Barthwal. So I'm from here only, and particularly, I know I have interrupted during your lectures right now. So for that time, bear up with me. So buddies, ऐसा होता है कि simply यही है कि जो आप यहाँ कर रहे हो 5 दिन की preparation है. Particularly आपका SSB अभी return आने वाला है, SSB आपका आएगा. So particularly आपको 1 महीना मेहनत करना है. बस वो 5 दिनों के लिए. और उसके बाद अगर निकल जाते हैं तो आपके लाइक अगर परमानेंट कमीशन है तो लाइक 40 साल की इज्जत है, 40 साल काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेगी. पर्टिकुलरली मेरा तो यही मोटिव था कि घूमने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें करने को मिलेंगी, एडवेंचरस लाइफ है. तो 5 दिन में जब भी ऐसा लगता था कि छोड़ो आज चल लेते कहीं कि लेक्चर टॉपिक का प्रिपेयर करना, वैसे ही बोरिंग होते हैं, तो तब वही चीज़ याद आती थी कि कर लेते हैं 5 दिन की मेहनत और 40 साल की इज्जत. क्योंकि अगर 5 दिन में एक दिन भी चला गया, कोई एक टॉपिक भी एक पेज भी छूट जाता है कि नहीं करना, आलसपन आता है यार, आपको सबको आता है, मुझे भी आता था. तो यही रह जाता है कि आज कर लेते हैं, कल जीतेंगे. लाइक मोहम्मद अली का कोट भी था कि लाइक एवरी सेकंड आई ट्रेन, आई टेल टू माई सेल्फ दैट स्वेट नाउ एंड लीड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन. और तो मैंने कोट में कुछ गलत किया हो तो माफ करना. तो यही रहता है. तो पर्टिकुलरली अगर बेसिस आए कि 5 दिन के प्रोसीजर में क्या होता है, तो पहले दिन तो आपका स्क्रीनिंग होता है. स्क्रीनिंग में 2 चीज़ें हैं, एक OIR, उसमें 2 आते हैं. सो लोग ऐसे बोलेंगे कि आपको हम 30 मिनट देंगे बहुत तमीज़ से, बट मत मानना 15 मिनट भी नहीं देंगे उन्हें करने के लिए. मेरी गलती थी, मेरे को पहला टेस्ट मिला, उन्होंने बोला 30 सेकंड दूंगा और 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा. भाई वो बंदा झूठा था, उसने मेरे को 15 मिनट भी नहीं दिए मुश्किल से. मेरा आधा पेपर छूट गया था OIR का, इसलिए मुझे दूसरे नॉन वर्बल में सारे करने पड़े. ऑल्दो आई वॉज लकी कि दोनों हो गए थे, ठीक ठाक स्कोर बैठ गया होगा, लाइक सेकंड ग्रेड तक आ गया होगा. तो अगर आपको OIR में अच्छा आता है, लाइक फर्स्ट ग्रेड आ जाता है, तो पर्टिकुलरली आप आधे रिकमेंड मतलब स्क्रीन नहीं दो. सेकेंड है PPTT में ज़्यादा कुछ नहीं, एक हाई लेवल स्टोरी लिख दो और एक अच्छा सा नरेशन कर दो और एक हेल्दी पार्टिसिपेशन कर दो. आपको दूसरों से मतलब मत रखो कि वो कितना बकवास कर रहा हो, कितना लेक्चर में घुस रहा है. अगर किसी को चुप करा रहे हो तो एक प्रो टिप ये है कि जो ज़्यादा बोल रहा है उसको बोल दो कि आई अपार्शियली एग्री विद यू. वो चुप हो जाएगा कि ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, तो चुप हो जाएगा और आप बोल पाओगे अपने पॉइंट. बस यही पॉइंट्स होते हैं. फिर दूसरे दिन आता है आपका साइकोलॉजी में मेरे को एक ही पॉइंट लगा कि जो आपका टैट होता है, लोग रट के चले जाते हैं, ऑब्वियसली बुक्स दी गई हैं, रटते हैं सब.
उसमें कोई गलत बात नहीं है, स्टोरीज तो अच्छी वो भी हैं, तो फिर आउट क्यों होते हैं? एसडी की वजह से। एसडी मान लो हमने स्टोरी में लिख दिया कि आई एम वेरी कोऑपरेटिव, मैंने एक ग्रुप बनाया है दोस्तों का और मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी, और आपने एसडी में लिख दिया कि मैं काइंड ऑफ एक इंट्रोवर्ट गाय हूँ, मैं घर में ही रहता हूँ ज़्यादातर टाइम, पढ़ाई करता रहता हूँ, तो काइंड ऑफ वो हो जाएगा ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। तो साइकोलॉजिस्ट यही चाहता है। एसडी अगर आप अपना टैग भी कर रहे हो तो एसडी भी अपने एक अच्छा सा रीडिफाइन करो। लाइक एक दो पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ कि लाइक अगर आप पेरेंट्स का लिख रहे हो तो लिख दो कि पेरेंट्स मेरी ओपिनियन मांगते हैं घर की हर चीज़ में कि क्या करना है। लाइक वो मेरे को चोर्स देते हैं छोटे छोटे, लाइक सब्जी ले आओ, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में वो छोटी छोटी पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं आपके OLQs। और एक टैग में एक बात और है, हर स्टोरी में आप ये समझो कि एक OLQ में आपको स्टोरी लिखनी है, या किसी एक स्टोरी में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, तो किसी एक उसमें आपको अपनी लाइक ऑनेस्टी, लाइक एनी अदर काइंड ऑफ OLQ दिखाना है। अगर आप ऐसा भी करते हो तो आप आधे इनो साइकोलॉजी 90% मेरे हिसाब से तो 80% to 90% बच्चों को आउट करता है पूरे SSB में। अनलेस अगर आपकी बहुत ही खतरनाक GTO गया है फिर भी आप आउट हो जाओगे साइकोलॉजी के। सेकेंड इज लेक्चर इंटरव्यू में तो बस यही है कि सच बोलो, मेरे हिसाब से नहीं आता तो मत बोलो। उनको ऐसा कोई पढ़ाकू बंदा नहीं चाहिए, पढ़ाकू बंदे ज़्यादातर आउट ही होते हैं क्योंकि वो सुनते नहीं कभी। आर्मी इज अबाउट टेकिंग ऑर्डर्स। अगर आप बंदा ऐसा कि इतना पढ़ा वो बोलेगा जो उसको ऑर्डर दे रहा है कि मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, ये क्या बताएगा, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक बंदा था, उसकी JEE स्कोर था 99.9, ही वॉज आउट। तो बंदा अगर सिलेक्ट होता काफ़ी कुछ कर सकता था, लाइक अगर सिग्नल्स में जाता, बट नहीं चाहिए ना, नहीं आता तो बोल दो कि नहीं आता। थर्ड इज GTO चिल पार्ट होता है लिटरली, लेक्चरेट को हटा दो अगर तो GD में क्या है कि बस आप अपनी ओपिनियन दो। PPDT में ये होता है कि कॉमन कंक्लूजन में आना है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। बट GD में क्या अपनी ओपिनियंस दो, कुछ भी पार्ट है, कुछ भी। लाइक मेरा टॉपिक था कि विच इज अ ग्रेटर ग्लोबल इशू कि रेस बिटवीन सुपर नेशंस, टेररिज्म एंड पोल्यूशन। मैंने टेररिज्म चूज करा और मैं बाकी दो टॉपिक्स थे उनको भी अपने अंडर ही आ गया था, काइंड ऑफ आधे बच्चे चुप हो गए थे। तो यही करना, अपने पॉइंट्स रखने, उसमें ये नहीं रखना कि मैं इसको हरा दूं, बस क्वालिटी पॉइंट्स रखो, चुप रहो, सुनते रहो, अपनी मुंडी हिलाते रहो, थोड़ा बेयर अप करो 5-6 मिनट, और बस जब अपना पॉइंट आ रहा है तगड़ा सा ब्रह्मास्त्र फेंक दो। GTO सुने और जोर से बोलना, ये आवाज एकदम आए। मेरी एक पॉइंट था कि मेरी आवाज थोड़ी मोटी थी, जब भी मैं बोलता था GTO सुन लेता था। सेकेंड इज आपका ये हो जाता है जो ग्रुप टास्क होते हैं, इन सब में अपना जोश हाई रखना। लाइक आप बोलते होंगे स्नेक रेस, उसमें भी ऑब्जर्व करेगा कि आप कितना कोऑपरेटिव हो। कि जब आप एक पर्टिकुलर टास्क है जो हाई वॉल होती है, मैं मानूंगा कि सबसे पहले ऊपर चढ़ जाना और सबको ऊपर खींचना। मैंने यही करा था क्योंकि इसमें ये दिखता है कि आप मदद कर रहे हो, पूरे ग्रुप को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जोश बढ़ा के रख रहे हो कि कोई नहीं। हमारे ग्रुप में एक बंदे का पैर टूट गया था, फिर भी हम उसे लेके गए थे एंड तक, और हमारे ग्रुप से ही सबसे ज़्यादा हुए थे। और एक बात है, अपनी दोस्ती बढ़ा के रखना, मतलब आप जाओगे वहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे, अजीब होते ही हैं यार, कोई गुस्सैल होता है, कोई कुछ होता है, बेरब करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। कई बार तो बैच में लड़ाई हो जाती है रात को कि इसने ऐसे कर दिया, इसने वॉशरूम गंदा कर दिया, ये सब होता है। इसमें अगर आप दोनों की सुलह करा सकते हो तो इसमें ही आपकी रियल पर्सनैलिटी दिखेगी। तभी बोलते हैं कि SSB का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है और कई चीज़ें सिखाता है। लास्ट GTO में एक चीज़ एक कर देना, कमांड टास्क में सब लोगों को पटा लेना और बोलना कि मेरे को ज़्यादा बार बुला देना, इससे आप GTO की नज़र में आओगे। और GTO तुमसे क्वेश्चंस पूछेगा कि कहाँ से हो, जैसे अपनी पर्टिकुलर जगह में कोई इंटरेस्टिंग बात है, तुमने क्या करा, तुम्हारा क्वेश्चन इंटरव्यू कैसा किया। और लास्ट कॉन्फ्रेंस के दिन, अगर इंटरव्यू के दिन तुम्हें कुछ नहीं आता है तो पढ़ लेना, वहाँ साइबर कैफे रहता है, पैसे दे के पढ़ लेना या किसी दोस्त से पढ़ लेना, और कॉन्फ्रेंस के दिन वो पक्का पूछेंगे तुमसे, जस्ट टू चेक कि ये बंदा जो बोलता है उसमें अटल रहता है कि नहीं। और एक इंटरव्यू का क्वेश्चन सुन लो, मेरा GK खराब थी, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मेरी GK बिल्कुल ख़राब है सर। उन्होंने क्यों, अखबार नहीं पढ़ते, मेरे को पसंद नहीं आता सर, छोटा छोटा लिखा रहता है ऐसा है। उन्होंने बोला ठीक है मैथ्स चेक करते हैं, 197 को 97 से मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट है मनी में, प्रेशराइज करने के लिए। मैं टेंस्ड अप हो गया था, मैंने एक बार गलत आंसर दिया, मैंने एक और चांस मांगा, फिर मैंने सही दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू का काम ये है कि तुम्हें टेंस्ड करना और तब देखना तुम परफॉर्म कैसे करते हो। और एक बात है, अगर GTO तुम्हारा टास्क डिफिकल्ट करे तो समझ लो तुम रिकमेंड होने वाले हो, बिकॉज वो फालतू लोगों का नहीं करेगा। अगर आप GD में अपने आपको आउटशाइन करोगे, अगर आप GD में दिखाओगे, लाइक कि GD में यही है कि जब ग्रुप प्लानिंग होती है तो देख लेता है कि इन बच्चों को मेरे को नजर रखनी है ये ऑब्स्टिकल्स के टाइम पे, और उन्हीं का वो टास्क डिफिकल्ट करेगा। तो अगर वो कर रहा है तो मतलब सही डायरेक्शन में होगा। अगर तुम्हें लग रहा है आसान किया, आ रहे थे हमारे पास, भाई GTO ने कुछ नहीं करा, आसान है, मेरा तो हो जाऊंगा रिकमेंड। मेरा डिफिकल्ट किया था, मेरे जितने दोस्तों को रिकमेंड किया, जिनका डिफिकल्ट किया था, लाइक बल्ली खींच ली, रोप ले ली, बस फट्टे से ही करो वाला, लाइक वो दिखता है।
सो गाइस यही है मेरी, और एक काम करना, बस स्ट्रेस मत लेना, चिल करना, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना वो पहले दिन ही दिख जाता है उनको जो लेने आएगा। लाइक एक कमांडिंग ऑफिसर आएंगे, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आएंगे, वो इंट्रोड्यूस करते हैं आपको प्रोसीजर से, तो देख लेते हैं आई थिंक कि कौन स्ट्रेस्ड अप है, वो ऐसे शोल्डर्स करके रखेंगे, बी लाइक रिलैक्स्ड यार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। Okay, gentlemen, basically you have seen that he have shared complete informations. Hope you have got motivated. Okay? What important thing he's told you that competence level, presence of mind, your communication skills, very important part. Okay? Because he told you your communication should be loud and clear. Understood? This is very important. Understood? The thing is that whatever you are telling, whatever answer you are providing to the these experts, जो आपके GTO हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या GTO एक्टिविटीज हो रही है, अगर आपने चीज को लॉजिकली अगर आप नहीं बोल पाओगे, अगर लाउड एंड क्लियर नहीं बोल पाओगे, आपका प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज अगर सही नहीं है, तो वही चीज उन्होंने कवर की है। That's why he got selected. Understood? Yes, So sir. this is the requirement I am telling you. The same thing we have been teaching you here in the Defense Academy. In the initial days of the two weeks SSB course, everything has been taught to you for your communication skills, improve your competence levels, your body language, your GTO tasks, individual tasks, group tasks, everything has to be improved all the way. And they have done it. They have done it and they have recommended. This is the reason. That there is some meaning of training. You have to take an own interest. And this is the opportunity they have told each and everything in front of you. Now you can think about it. Any doubt, you can ask him immediately, quickly. Then I will basically request to Rishi Dubey to tell something. Before this, you can ask something to the spouse. Any doubts, especially anybody? खड़े होकर बोलो बेटा। I want to ask which was the task you most enjoyed, or in which you thought that you have given the best possible solution or something. And it was command task obviously. कमांड टास्क को GTO मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय करा था। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो ग्रुप प्लानिंग में बेस्ट किया था, आई थिंक मैं रिकमेंड भी हुआ था कि बोलने के लिए, तो मैंने पूरा प्लान एक्सप्लेन भी करा था। लाइक कोई भी लाइक एक रवि पटेल से तो मैं इससे बताएंगे कि लाइक फॉरेस्ट हो, रेंजर का टॉपिक ला जाना, ये सब होते हैं, लाइक कुछ हिडन रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं दिखाते। अगर आप दिखा रहे हो तो मतलब आप ऐसा सोचो तो GTO की नज़र आएगी आप पे। तो मैंने ये बोला था कि रेंजर कर लेंगे, उसका वायरलेस यूज़ कर लेंगे जहाँ पे हम घूम गए। तो इसलिए जब ग्रुप टास्क हुआ था और ये PPT हुआ था या PGT हुआ था, तो मेरे पे ज़्यादा नज़र थी, तो मेरी जो अप्रोचेस थी वो ज़्यादा सुनी गई थी कंपैरेटिवली, इसलिए मैंने वो ज़्यादा इन्जॉय करा। Okay? Anybody? No? Okay. Ask Rishi Najus, please. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rishi Dubey, and my friend Spurs have covered all of things about the procedures of SSB. I have some personal experience that would be make friend before reporting day, मतलब at the time of reporting. If मैंने मेरा बताऊँ तो मैंने 20 friends बना लिए थे reporting day से पहले उनके parents के साथ। I pair up with 20 guys, and out of which 4 are recommended वो मेरे ही ग्रुप में थे। सिंपल बात है, और मैं सबसे ज़्यादा enjoy मैंने अपने पार्ट SSB में कोई GTO को ही किया। मैंने सबको बस बोल दिया गया था कि भाई मेरे को बुलाना, अगर तेरे को कमांड टास्क मिलता है तो मेरे को बुलाना, मेरे को मिलता है तो मैं तेरे को बुलाऊंगा। ऐसे मैंने सबसे 17 गाइस स्क्रीन इन हुए थे, मेरे में 53 रिपोर्टिंग थी, उन 17 से ये बना ली थी। सिंपल बात है, फ्रेंडशिप मैटर करती है आपकी सबसे ज़्यादा। और दूसरा मेरे को साइकोलॉजी में मेरा सबसे ज़्यादा डाउट गया था WAT में, क्योंकि आपको पता है कल मैंने बताया था मेरे को स्नीजिंग आ गई थी, मेरे 2-3 वर्ड्स जा चुके थे, मैं ब्लैक पेमेंट कर चुका हूँ, कॉन्फिडेंस गिर चुका था। मेरे को लग रहा था मैं साइकोलॉजिस्ट मेरे को ले जाएगा, फिर भी मेरा 3 मिनट का कॉन्फ्रेंस हुआ और मैं रिकमेंडेड हो गया। मुझसे सिंपल है, साइक ने एक ही क्वेश्चन पूछा था WAT में लैग क्यों किए थे, और कुछ नहीं पूछा। और इंटरव्यू की बताएं तो पर्सनल इंटरव्यू में ये हुआ कि मुझसे पूछा गया कौन सी बुक्स तुमको इंस्पायर करती है सबसे ज़्यादा, तो मैंने सबसे पहले भगवद गीता का नाम लिया, मैंने पढ़ी थी। तो उन्होंने पूछा 5 थिंग्स यू मोस्ट लाइक्ड अबाउट द भगवद गीता। फिर उसने मतलब मैंने जब बताया तो उन्हें एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, जैसे मैंने बोला था आई ऑलवेज स्माइल, मतलब गीता हमको सिखाती है कि कोई भी वर्स्ट सिचुएशन हो हमें स्माइल रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था जो मेरे को हिट किया था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई हमारे क्लोज में किसी की डेथ होती है
तो तुम क्या करोगे, स्माइल करोगे या रोगे? दैट वाज द क्वेश्चन हिट मी एंड आई डोंट, मेरे को आंसर नहीं पता था। मैंने बोला, मैंने नहीं दिया, फिर भी मैं रिकमेंड हुआ। ऐसा नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुमको आंसर देना कंपलसरी ही है, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। मैंने सीधा सिंपल 1 सेकंड के अंदर आंसर दे दिया कि सर आई एम नॉट एक्नॉलेज अबाउट दैट, सिंपल है। और बिल्कुल काम होके देना है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाना है फर्स्ट डे रिपोर्टिंग में। पीपीटीटी में सिंपल करना है, ग्रुप की आपको ग्रुप से पहले डिस्कस कर लेना है कि भाई ऐसा ऐसा करना है। ग्रुप बनने से पहले अगर आपका फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ, आपका 3rd या 4th ग्रुप बना है, तो ग्रुप वालों से पहले ही डिस्कस कर लीजिए कि भाई देखिए कंक्लूजन के टाइम ऐसा ऐसा करना, बीच में ज़्यादा मैसी मत करना, मतलब ग्रुप से कोऑर्डिनेट कर लीजिए जिससे आपको आखिरी कंक्लूजन में कोई दिक्कत ना हो। मैंने अपने ग्रुप से किया था और हम 2 रिकमेंड हुए थे ग्रुप से हमारे से, जो 2 वॉलंटियर हुए थे। मोस्टली ट्राई करना पीपीटीटी में वॉलंटियर होने की कंक्लूजन स्टोरी। हम दोनों वॉलंटियर हुए थे, उसको ज़्यादा वोट्स गए थे, कुणाल था वन ऑफ माई फ्रेंड, ही गॉट, उसने स्टोरी बताई थी। वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में सिंपल है, पूरी रिसोर्सेज देखना, ठीक है, रिसोर्सेज देखते हुए फिर उसके बाद आप डिस्कस करना और ऐसे कोर पॉइंट्स मानना कि आपको वॉलंटियर किया जाए। और जीडी टॉकिंग अबाउट द जीडी, मेरा जीडी का टॉपिक था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टेररिज्म कम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए या रोडवे या रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैंने रोडवे कनेक्टिविटी चुना था क्योंकि मैंने 3 मिनट तक कुछ नहीं बोला। मोस्ट ऑफ द बच्चे टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने रोडवे और रेलवे कनेक्टिविटी से, अगर रोडवे से मैंने सिंपल पॉइंट्स मारे कि रोडवे कनेक्टिविटी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर एमएनसीज आएंगी, मेरा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कवर हो गया, एमएनसीज आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जिससे टेररिज्म कम होगा। सिंपल है, मेरे पॉइंट्स बिल्कुल जेन्युइन थे। जीटीओ और मेरे जैसे स्पर्श ने बताया कि जीटीओ ने मेरे ग्रुप को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क दिए। मेरी 3 बार प्लैंक ले लिए गए थे पीजीटी के टाइम, मुझसे रोप ले ली गई थी, एक बार तो लॉक से ही करना था। ये था कि आपको जीटीओ अगर आप पे इंटरेस्ट ले रहा है मतलब आप रिकमेंडेड हो, सिंपल बात। और टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं है, आपसे नॉर्मल पहले आप जाओगे, आपको बिठाएंगे, आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, आप हाउ वाज योर 4 days, और सिंपल है आपसे खाना वगैरह के पूछेंगे, और फिर कुछ आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन जिनको आपके लिए मतलब उनको जानने हैं वो ही पूछेंगे। मुझसे साइकिक ने WAT का पूछा था और किसी ने कुछ नहीं पूछा। मेरी कॉन्फ्रेंस मुश्किल से 3-4 मिनट की चली थी, डिस्कशन 3 मिनट का हुआ था, कॉन्फ्रेंस 3 से 4 मिनट बस। भाई मैं कुछ नहीं, पर्सनल ओपिनियन है, फ्रेंडशिप जरूर करता हूँ। वो कॉन्फिडेंस में रहना, अगर टेंस रहोगे गलती करोगे पकड़े जाओगे। They have shared all the practical experience which will be useful for you. So basically you can ask all the doubts because your session is continue for 23rd October. हमारे ग्रुप कैप्टन सर हैं जो सर एज बोर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। You can ask all the questions because सभी आपकी जो प्रैक्टिकल आपको पता लग चुका है, ठीक है, काफी चीजें हमने कवर कर दी हैं which will be very useful for you for your interview. Understood? Yes sir. तो एनर्जेटिक हो जाइए। मोस्ट थिंग जो उन्होंने चीजें बताई हैं बहुत, एक तो कॉम्पिटेंस लेवल हैज टू बी अप टू स्टैंडर्ड, प्रेजेंट ऑफ माइंड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कम्युनिकेशन शुड बी लाउड एंड क्लियर। जो चीज अभी ऋषि ने बताई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव बीन टेलिंग यू इन द क्लासरूम्स ऑल द टाइम। जब भी हम आपको मोटिवेशन वीडियो देते हैं, जो लेक्चर देते हैं, मोटिवेशन वीडियो लेक्चर देते हैं आपको, उस वक्त हम आपको यही बताते हैं एट द फर्स्ट डे यू मेक ए फ्रेंड सर्कल्स। फ्रेंड सर्कल बनाने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। एटलीस्ट आप एक दूसरे का टैलेंट जानते हैं, आप ज़्यादा सीख सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अंडरस्टूड? और टीम वर्क बहुत जरूरी है बिकॉज आपको पता है कि आपको जीटीओ टास्क करना है, पापा ग्रुप टास्क में सब यही काम आएगा। यदि आप पहले से अगर फ्रेंड होंगे, आपने फ्रेंड सर्कल अच्छा बना के रखा है तो 100% दे विल हेल्प यू। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दे हैव डिस्कस्ड। ओके स्टूडेंट्स? Yes sir. You got motivated now? Yes sir. Good. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.